Now, topic for today is ratio analysis. Now, see, when we are whenever we are analyzing and understanding the balance sheet of any company or any business, so we calculate various ratios, and these ratios help us to understand the working of the organization and the future prospects of the organization. Okay? So ratio is a relationship between two figures. All of you know what are ratios. See, from the balance sheet and profit and loss account of the company, we can calculate certain ratios, and these ratios are very helpful and useful in determining the financial position of a business. For example, one of the ratio is current ratio. One of the ratio is current ratio. Current ratio is current assets by current liabilities. The formula of current ratio is current assets by current liabilities. Current ratio is equal to current asset by current liability. What are current assets? Current assets are those assets. Current assets are those assets which can be converted into cash or cash equivalents within 1 year. Current assets are those assets which can be converted into cash within 1 year. These are called current assets. And what are current liabilities? Current liabilities are those liabilities which have to be repaid within one accounting year or one financial year. जो एसेट्स एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, दे आर कॉल्ड करंट एसेट. एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो करंट है ही. स्टॉक करंट एसेट है, स्टॉक सेल करेंगे पैसा आ जाएगा. डेटर, डेटर इज करंट एसेट, पैसे मिल जाएंगे डेटर से. तो these are current assets. What are current liabilities? Current liabilities are those liabilities which are to be repaid within 1 year. Current ratio helps to check. Current ratio helps to check short-term solvency of the business. Short-term solvency of the business. आपको पता होगा मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स. जो अपना उधार नहीं चुका पाए वो क्या, इंसॉल्वेंट हो गया. विजय माल्या इंसॉल्वेंट हो गया. क्लियर. तो जो अपना डेट्स नहीं पे कर रहा है, वो आपका वो जो नहीं पे कर पा रहा है वो हो गया इंसॉल्वेंट. Current ratio helps to check the short-term solvency of the business, that whether in the short run, whether in the short run a firm will be able to meet its liabilities or not. Current ratio helps to check that whether in the short run the firm will be able to meet its liabilities or not. शॉर्ट रन में फर्म अपना लाइबिलिटीज को पे कर पाएगा या नहीं, इसको कहते हैं करंट रेशियो. देखिए, आपका करंट रेशियो, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, तो बैंक आपका बैलेंस शीट से आपका करंट रेशियो निकालेगा. आपका करंट रेशियो, आपका करंट रेशियो अगर 1/2 है, 0.5, मीन्स आपके पास 1 लाख का एसेट्स है और 2 लाख का लाइबिलिटी है. विल द बैंक गिव यू लोन? आपके पास करंट एसेट्स 1 लाख का है और 2 लाख का लाइबिलिटीज है. दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ फाइनेंशियल पोजिशन टू पे योर शॉर्ट टर्म डेट्स, तो बैंक विल नॉट गिव यू लोन. Banks generally demand a current ratio of more than 1.33 or 1. 2:1 is considered to be the ideal ratio. Current ratio 2:1 आइडियल माना जाता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का लाइबिलिटी है तो कम से कम 2 lakhs का एसेट होना चाहिए. आपका करंट रेशियो अगर 2:1 है, दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग लाइबिलिटी ऑफ 1 rupee, you have assets of 2 rupees. That means you are in a fine position. बैंक कम से कम 2:1 तो आइडियल है, लेकिन बैंक करंट कम से कम 1.33 1.5 का रेशियो मांगता है, तभी आपको कोई लोन मिलेगा. क्लियर. तो करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. ओके. First ratio that we have is
current ratio is equal to current asset by current liability. What will current assets include? Current assets includes current investments. Current investments are those investments which will be sold within 1 year. Inventories, excluding loose tools, stores and spares. Loose tools, stores and spares, these are not the part of current assets because we are not going to sell them. हमारे फैक्ट्री में जो स्क्रू ड्राइवर है, जो प्लायर्स है, जो टूल्स है, उसको हम सेल थोड़ी करेंगे, इसलिए लूज टूल्स को एक्सक्लूड कर दिया. ये कैश में कन्वर्ट नहीं होता है. ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स बिल रिसीवेबल प्लस डेटर लेस प्रोविजन. तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया? इन्वेंट्री आ गया एक्सक्लूडिंग लूज टूल. करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट. अदर करंट एसेट विल इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स. क्लियर? याद रखना लूज टूल्स को इन्वेंट्रीज का पार्ट नहीं लेते. यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में. लूज टूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री. ओके. Current liability will include short-term borrowing, trade payables. Trade payable includes bill payable and sundry creditor. Other current liabilities. Other current liabilities financial statement हम लोग देखे थे. इसमें क्या क्या आता है? Income received in advance, outstanding expense, calls in advance, current maturity of long-term debt. ये जितना भी other current liability का heading में आता है सब इसमें चला जाएगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स. तो आपको ये देखना है करंट रेशियो का क्या काम है. दिस रेशियो इज यूज्ड टू असेस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम. whether the business will be able to meet the short term liabilities on time or not, that is measured by current ratio. Current ratio is set. Current ratio, ideal ratio is 2:1. करंट रेशियो का आइडियल क्या है? 2:1. हाइयर द बेटर. करंट रेशियो इज हाइयर द बेटर. राइट इट. करंट रेशियो हाइयर द बेटर. 2:1 तो अच्छा है बट हाइयर द बेटर. अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए का लाइबिलिटी है एंड मेरे पास में 10 lakhs के एसेट्स है तो रेशियो 10:1. हाइयर द बेटर. बट दो चीज ध्यान देना. इफ करंट रेशियो इज लेस देन 2:1, current ratio less than 2:1 is not good. It indicates that the firm is not having sufficient assets to pay the liabilities and it will not be able to meet the liabilities. Clear? But a very high current ratio is also not accepted. बहुत ज्यादा हाई करंट रेशियो रहेगा तो भी एक प्रॉब्लम है. बहुत ज्यादा हाई करंट रेशियो है इसका मतलब ये है कि योर इन्वेंट्री इज पाइलिंग अप, यू आर नॉट एबल टू सेल द इन्वेंट्री प्रॉपरली. आपका स्टॉक बढ़ते जा रहा है, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, स्टॉक डेड स्टॉक हो रहा है आपके पास. इन्वेंट्री रोटेट होना चाहिए बिजनेस के अंदर. सेकंड, 3 कारण होता है जिससे कि करंट रेशियो बहुत हाई होता है. करंट रेशियो हाई क्यों होता है? या तो आपका इन्वेंट्री सेल नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है, या फिर लार्ज अमाउंट इज लॉक्ड अप इन द ट्रेड रिसीवेबल्स. यू आर नॉट बीइंग एबल टू कलेक्ट मनी इजिली फ्रॉम डेटर. आप डेटर से इजिली पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपका डेटर्स हाई है, करंट रेशियो हाई है. प्लस योर कैश और बैंक बैलेंस माइट बी लाइंग आइडल. यू हैव आइडल कैश बैलेंस विच यू हैव नॉट यूज्ड. आपका कैश बैलेंस आइडल पड़ा है जिसको आपने सही से यूज नहीं किया है. तो मच हाइयर करंट रेशियो इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज उससे मालूम चलेगा या तो तुम्हारा इन्वेंट्री सेल नहीं हो रहा है, या तुम डेटर से पैसा नहीं ले पा रहे हो, या तुम्हारा कैश जो है वो तुमने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया है, कैश आइडल पड़ा है. घर पे 10 लाख रुपए पड़े हुए, कोई काम का नहीं है, उसको इन्वेस्ट करो कहीं पे. समझ में आया?